Okay, so today the topic which we will be taking is combination of cells. मतलब we had studied in 10th class the combination of two or more cells is called a battery. तो ये बैटरी का सिंबल भी हमको बता दिया गया था. ये पॉजिटिव ये था नेगेटिव टर्मिनल. इसी तरह से जब हम बहुत सारे सेल्स को कंबाइन करते हैं और उससे हमको एक रिक्वायर्ड ईएमएफ चाहिए. Why do we combine cells? A single cell cannot give us the required amount of EMF required in the circuit. So we use a combination of such cells in a proper manner so that we get closer to the required EMF of the circuit. So for that purpose, we need to know how are the cells combined, what happens, what are the types of combinations possible in cells, and what happens to the effective EMF or equivalent EMF of the cell when we combine them in that manner. Similar to the combination of cells, some combination of, we can say, resistances, the cells are also combined in two manner. Those are series combination and second being parallel combination. In practical sense, when you go to look at the battery of larger purpose, that is a battery of a truck or a car, in that combination, not only the cells are only combined in series, not only in parallel, they are combined in mixed combination. Mixed combination. अब mixed combination का क्या मतलब है? The combination or a effective way of combining series as well as parallel combination to get the equivalent purpose, so that they can fit in a particular box for the required combination. Okay, so mixed combination हमको लास्ट में पढ़ना है. पहले हम देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसा इफेक्टिव ईएमएफ आता है, और प्लस सेल जब हम क्रिएट करते हैं तो उसके साथ उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है स्मॉल आर. ओके, स्मॉल आर और ई की वैल्यू को हमको देखना है कि जब हम सीरीज में कंबाइन करेंगे तब कितनी होगी और पैरेलल में कंबाइन करेंगे तब. First type of combination, that is cells in series, means when the cells are said to be connected in series. So looking at the diagram over here, two cells or two or more than two cells effectively are said to be connected in series if the negative terminal of the first cell is connected to the positive of the second, and the negative of the second to the positive of the third, and so on. Such a combination of cells is called to be series combination. So when these cells are connected in series, what will be their effective or equivalent EMF after the combination and the equivalent resistance after the combination, ये हमको पता करना है. हाँ तो भैया सेल सीरीज में कब कहलाएंगे? When the negative of the first is connected to positive of the second, and the negative of the second to positive of the third, and so on, the cells will be called to be connected in series. ठीक है? So looking at the two terminals over here, देखो तो terminals का मार्किंग दे दिया हमने कि ये फर्स्ट सेल है, उसका ये E1 है, तो उसके दो टर्मिनल्स है A और B. So suppose we are knowing the potential difference across A and B, तो VAB is equals to क्या हो जाएगा? V is equals to होता है E minus IR, ये हम लोग रिलेशन पढ़े हैं, E minus IR. तो EMF ऑफ द फर्स्ट सेल E1 और करंट फ्लोइंग थ्रू इट दोनों में कॉमन है तो I, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, ये हो जाएगा VAB की वैल्यू. सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेकंड टू टर्मिनल्स, मतलब सेकंड सेल के अक्रॉस कितना हो जाएगा? VBC is equals to E2, similarly E2 minus IR2. ओके, अब अगर मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A और C चाहिए डायरेक्ट, तो देयरफॉर VAC is equals to कितना हो जाएगा? VAB plus VAC, यही होगा. is equals to VAB की जगह मैं E1 minus IR1 plus इसकी जगह पर E2 minus IR2. अब इसको देखो मैं अरेंज करके कैसे लिख सकता हूँ. E की वाले को साथ ले लूंगा, E1 plus E2 हो जाएगा. ठीक है, ये हो गया. फिर माइनस I into R1 plus R2 नहीं लिख सकता क्या? जस्ट कंपेयर इट VAC. तो देखो the potential difference across complete circuit E, that is V between A and C is equals to E1 minus
E1 plus E2 minus I into R1 plus R2. Comparing this to ये वाला फॉर्मूला V is equal to E minus IR, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं E को E इक्विवेलेंट बोलता हूँ, ठीक है, और R को R इक्विवेलेंट बोलता हूँ, तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी E1 plus E2 और R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी R1 plus R2। ये हमारा वैल्यू आ गया E इक्विवेलेंट फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन is equal to E1 plus E2, that is equal to summation of all the resistances EMF of the cells in the circuit that is in series and summation of R, that is internal resistance of all the cells in the circuit. तो मेरे को ये दो चीजें पता होनी चाहिए। Whenever you are connecting the cells in series, then you are getting equivalent EMF is equal to sum of all the EMF of the cells and equivalent resistance equal to sum of all the resistance of the circuit. So next we'll be moving with cells in parallel. Over here you can see two cells which are connected in parallel. That is, their two ends means the positive terminal of each cell which are connected in parallel should be connected to a common terminal, and the negative of all the cells should be connected to other common terminal. Then only these cells will be said to be connected in parallel. अब क्या हो रहा है, पॉजिटिव इसका यहाँ पर जॉइंट हो गया, नेगेटिव इसका यहाँ जॉइंट हो गया, तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो हमको देखना है। व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ these two cells connected in internal resistance of the cells connected in parallel and their corrective EMF also. Okay, here goes the definition for cells in parallel. If the positive of each cell is connected to the common terminal and the negative of each to another common terminal, as you see that in the diagram, then the cells are said to be connected in parallel. Now we derive the expression for the equivalent EMF as well as the equivalent internal resistance of all the cells connected in parallel. As we know that in a parallel combination, the potential across each cell would be the same. तो उस कॉमन पोटेंशियल को हम लोग सपोज V ले लेते हैं, ठीक है। कॉमन पोटेंशियल जिसके अक्रॉस बढ़ रहा है वो V है, इस टर्मिनल से इस टर्मिनल के बीच में V है। तो करंट यहाँ पर डिवाइड होगा, ठीक है। I1 सपोज ये है और यहाँ पर जा रहा है I2, तो the current in each cell would be the different. So we will find out the values for I1 and I2 and then add to get the total current, same as we do in parallel combination. ओके, तो भैया कॉमन पोटेंशियल V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V A माइनस VB करना है, V A माइनस VB यही होगा, V A माइनस VB दैट विल बी इक्वल टू V इज इक्वल टू क्या होता है E माइनस IR। तो अब EMF किसका लें हम लोग, टोटल EMF E इक्विवेलेंट, ओके, E इक्विवेलेंट एंड टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू इट वोंट बी द सेम एंड टोटल करंट ये हम निकालेंगे I is equal to I1 plus I2 करके और R भी इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। देखिए अब क्योंकि इक्विवेलेंट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसके अक्रॉस सेम है, तो किसी भी एक के अक्रॉस में निकाल लो तो भी इक्वल आएगा। दैट इज V is equal to E1 minus I into R1 अगर लोगों को क्या गलत होगा, क्योंकि पोटेंशियल क्या है सब में सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द सेल्स वुड बी द सेम। E1 minus I R1 ये लिख सकते हो E1 और उसमें से करंट जो जा रहा है वो I1 है, तो I1 लेंगे, I1 is equal to T minus E1 upon R1। ये भी माइनस में है, अगर इसको हम उधर ले जाते हैं, इसके बाद I1 is equal to अगर इसका माइनस हटाना तो इधर चेंज करना पड़ेगा, तो B माइनस हो जाएगा E1 minus B upon R1 ये होगा, ये I1 की वैल्यू। सिमिलरली अगर मैं I2 निकालता हूँ, सिमिलरली I2 इक्वल टू क्या होगा, सिर्फ रोटेशन चेंज कर दो भाई, E2 minus B upon R2 क्या आएगा, कितनी आएगा, ओके। अब निकालते हैं कि भाई टोटल करंट सर्किट में से कितना जा रहा है, तो हम लोग देखें दैट इज इफ I is equal to I1 plus I2 then I is equal to I1 की वैल्यू कितनी आएगी, I1 की वैल्यू हम उत्तर देंगे E1 minus B upon R1 plus E2 minus B upon R2 यही आएगा, ओके। अब let us arrange it in the form we know I is equal to कितना हो रहा है EV by R1, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ
E1 by R1 plus E2 by R2 minus P into 1 upon R1 plus 1 upon R2 ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं? देखो E1 by R1 सब में रहेगा, ये प्लस में माइनस B कॉमन निकाल करके 1 upon R1 plus 1 upon R2, ठीक है। तो यहाँ से कंपेयरिंग इट अगेन, जैसे वहां पर हम कंपेयर किए थे इसके साथ, कंपेयरिंग विथ E और R की वैल्यू मेरे को चाहिए, तो I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस B अपॉन R इक्विवेलेंट, तो यहाँ से E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना है E1 by R1 plus E2 by R2, ये आ रहा है। When we arrange it in the form, देखो फॉर्म याद रखो, E is equal to E minus IR होता है, ठीक है, IR होता है। इस फॉर्म में जब हम इक्वेशन को ला लेंगे तब हम E के लिए और R का इक्वेट करके वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम उस फॉर्म में लाते हैं इक्वेशन को, उसके बाद कंपेयर करना है। तो उसके लिए क्या करना है, इसको यहीं रख के इसको इधर ला करके आगे बढ़ना, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर से एलसीएम ले लो और इस फॉर्म में लाना है हमको, इक्वेशन को ध्यान रखो, यहाँ पर इस फॉर्म में लाना है E B इक्वल टू E माइनस IR, क्योंकि ये मेरा फॉर्मूला है, इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, B इनटू ये कितना आ जाएगा R1 R2 और ये हो जाएगा R1 प्लस R2 इक्वल टू, इसको मैं नोट कर दे रहा हूँ, इसको भी E1 R2 plus E2 R1 the whole upon R1 R2 minus I, okay। ओके, तो हाँ हमारा टॉपिक कहाँ पर हम यहाँ पर लिख के थे, we had to arrange it in the form P equal to T minus I to R। now ये जो टर्म है ये इस तरफ जाएगा एलसीएम लेकर के, तो दोनों टर्म में मल्टीप्लाई होगा, मतलब दिस वन एंड दिस वन, तो दोनों मल्टीप्लाई करने से ये कट ऑफ हो गया है और यहाँ पर I into R में I into दिस वन इज मल्टीप्लाइड होगा, तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा E1 R2 plus E2 R1 होल अपॉन R1 plus R2, कितना बचा है, ये फार्मूला हो गया, फॉर्म हो गया, माइनस I into इसको ऐसे ही दे देना R1 R2 अपॉन R1 plus R2। अब ये देख करके क्या समझ आ रहा है, अब देखो ये फॉर्म में अरेंज हो गया, P इक्वल टू E माइनस IR, E R R, ओके। तो अब हम इसके लिए स्टेटमेंट डालेंगे, कंपेयरिंग विथ P इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I into R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू है, तो यहाँ से निकालिए, देखो E equivalent is equal to E1 R2 plus E2 R1, ये डायरेक्ट हो जाएगा अपॉन R1 plus R2 and R equivalent is equal to R1 R2 the whole upon R1 plus R2। ये मेरे को दो वैल्यूज मिल गई थी, इसके लिए when the cells are connected in parallel, yes, in between when we were comparing directly the values from the equation we had obtained, from that we had equated E equivalent by R equivalent is equal to E1 by R1 plus E2 by R2। This can also be used at times in the when the numerical is asking to just find out the ratio, or if we are having the values of E1 E2 R1 R2, this can also be used, that is the ratio of EQ by E equivalent by R equivalent is equal to ratio of individual EMF and in their respective resistance and so on plus कर। तो this is also easy to memorize। क्या बोल रहे हैं, अगर मेरे को पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट EMF वर्सेस देयर इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, तो सभी के रेशियो को ऐड कर दूं तो भी आंसर आएगा। ये स्टेटमेंट यही बोल रहा है, देखो फर्स्ट वाले का EMF अपॉन उसका रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस,
सेकंड वाले का ईएमएफ और अपन उसका रिस्पेक्टिव एंड सो ऑन करूंगा तो मेरे को ये रेशियो भी मिल जाएगा. नीड नॉट फाइंड दिस. ठीक है, बट दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट ईएमएफ. ठीक है, एंड दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. तो देखो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस था ना वैसा ही आ रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए भी. दैट इज 1/r is equals to 1/r1 plus 1/r2. Now next type of combination possible is mixed combination. Now mixed combination, as the name states, is the combination of series and parallel combination of cells. तो mixed combination कैसा है? सपोज मेरे पास एक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है जिसमें n सेल्स कनेक्टेड है सीरीज कॉम्बिनेशन में, और ऐसे ही m नंबर ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की मेरे पास m रोज है. ठीक है, m रोज ऑफ n सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज मेरे पास है और सबको मैंने पैरेलल में जोड़ दिया. तो दिस इज व्हाट ए टिपिकल टाइप ऑफ मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल वुड लुक लाइक. अब मुझे नहीं पता कि कितने n सेल्स सीरीज में है और कितने m रोज दिए मैंने, बट इफ यू हैव टू हैव अ मिक्स्ड कॉम्बिनेशन तो यू नीड टू रिमेंबर कि नंबर ऑफ सेल्स इन ईच रो शुड बी इक्वल. हम ज्यादा कर सकते हैं बट व्हाई टू डू सो. अगर देखो ये मैं इंडिविजुअल सेल्स की पता है और उसको मैं सीरीज में कनेक्ट करता हूं तो मैं सपोज 2 2 3 3 4 4 के ईएमएफ के n सेल को कनेक्ट कर देता हूं और उसके बाद उसके n रोज कनेक्ट करता हूं. तो इट वुड बी इजियर फॉर आवर कैलकुलेशन. तो n सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज एंड similar sort of m rows connected in parallel. This is what a series combination mixed combination of cells look like. Okay, current जो कि सर्किट में बह रहा है वो I हो जाएगा. Okay, now तो लिखना टोटल नंबर ऑफ सेल्स, टोटल नंबर ऑफ सेल्स इक्वल टू कितना होगा n cells multiplied by m number of rows. तो इक्वल टू क्या होगा n into m. ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ सेल्स इक्वल टू कितना हो जाएगा m into n. अब गोइंग टू द टोटल ईएमएफ ऑफ ए सिंगल रो. ठीक है, तो टोटल ईएमएफ ऑफ ए रो मतलब ये ऐसा रो इक्वल टू कितना हो जाएगा. अगर इंडिविजुअल सेल्स का ईएमएफ ई है और n नंबर ऑफ सेल्स हैं तो इंडिविजुअल ईएमएफ ई मल्टीप्लाइड बाय n नंबर ऑफ सेल्स ये हो जाएगा. ठीक है, टोटल ईएमएफ ऑफ ए रो, और रो कैसा है इन सीरीज है इसीलिए इन सीरीज लिखते हैं. टोटल ईएमएफ ऑफ ए रो इन सीरीज. ठीक है, नेक्स्ट टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इन, ये भी सीरीज में है देखो, इक्वल टू क्या होगा n into r. ये होती है r1 plus r2 plus r3. यही था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज का. याद हम लोग इसके पहले निकाले थे सीरीज में तो क्या था r1 plus r2 plus r3. तो सभी का अगर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस r की है इंटरनल रेजिस्टेंस तो n into r करके निकाल सकते हैं. ठीक है, अब इसके बाद ऐसे ही इंडिविजुअल रोज को हमने कैसे कनेक्ट किया है पैरेलल में कनेक्ट किया. तो सिंपल स्टेटमेंट आएगा m such rows are connected in parallel. Is that correct or not? ऐसे ही जो EMF n into E है टोटल और n into R उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ऐसे ही m रोज को मैंने किसमें कनेक्ट किया पैरेलल में कनेक्ट किया. ऐसे ही m रोज को मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया तो वहां पर पैरेलल का फॉर्मूला लगेगा. ठीक है, तो वहां पर अगर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस निकालता हूं है ना, वोल्ट का लास्ट हमारा पूरा 1/r डैश इज इक्वल्स टू उसको r डैश ले रहे हैं. ठीक है, तो पैरेलल में क्या होता था सपोज एक रो का टोटल रेजिस्टेंस कितना है n into r. तो कितना हो जाएगा 1/nr प्लस 1/nr प्लस एक्सेट्रा अप टू 1/nr जितना भी होगा उतने तक के लिए. ठीक है, तो ये कितने टाइम्स के लिए हो जाएगा अप टू कहां तक m टर्म्स. m टर्म्स का मतलब जितनी रोज होंगी उतना m टर्म्स तक जाएगा. ठीक है, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में इंटरनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया था 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2. तो भाई इंडिविजुअल रो का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आया था nr. तो उसको मैं 1/r करके कहां तक ऐड करूंगा m टर्म्स तक ऐड करूंगा. ठीक है, तो क्या मैं इसको
क्या मैं इसको m अपॉन एन आर ऐसे नहीं लिख सकता हूँ? मतलब ये सभी को जब मैं ऐड करूँ कितने टाइम्स m टाइम्स, तो m इंटू 1 अपॉन एन आर को क्या m अपॉन एन आर लिख सकता हूँ। ठीक है, ये चीज समझ आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब मैं टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट मतलब जब भाई इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन रोज करेक्ट हो गया, अब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी तो इसमें डालेंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, आर मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस आर डैश जो कि क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब यहां से मेरे को आर डैश पुट करना है, मेरे पास 1 अपॉन आर डैश की वैल्यू थी m अपॉन n r। ठीक है, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r प्लस nr अपॉन m। इसमें जस्ट रेसिप्रोकल ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, अब मेरे को कंपेयर करना है I इक्वल टू p बाई r से। ठीक है, I इक्वल टू आल्सो ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR होता है, I इक्वल टू V बाई R होता है। अब टोटल इसी का कैलकुलेशन है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, यही होगा। टोटल ईएमएफ जो है, टोटल ईएमएफ कितना निकाले थे हम, n नंबर ऑफ सेल्स है इसके अंदर, तो n इनटू ई निकाले थे हम लोग, याद करो अभी जस्ट स्टार्टिंग में लिखे। और टोटल रेजिस्टेंस कितना है ये देखो आगे, R प्लस NR अपॉन M। ठीक है, अपॉन M। अब ये बोर्ड हम ऊपर राउंड करेंगे। ठीक है, तो अरेंजिंग दिस ओवर हियर एलसीएम लेके फाइनल फार्मूला I इज इक्वल टू इसका एलसीएम m आएगा और इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा, तो n e बाई m r प्लस n r द होल अपॉन m जो ऊपर जाएगा इज इक्वल टू m n e अपॉन m r प्लस n r। इसका टोटल वैल्यू ऑफ करंट व्हिच विल फ्लो इन द सर्किट। ठीक है, अब मेरे को अगर मैक्सिमम करंट कंडीशन इसमें देखना है तो वही फ्रैक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कब आती है, जब डिनोमिनेटर कम होता है।